sell to other guy, okay, because it requires a very little bit of resource and research. But it tells you the price. It is not a valuation mechanism, but tells you what should be the price of the asset. Now, it tells you what should be the market price. Now, markets can always make mistakes. At any given point of time, markets are either overpriced or underpriced. So, it is just telling you this is the price at which you should be buying at the current level. If the price is overpriced, you can wait it. Otherwise, you don't care about it, you buy it. Okay. So, choose the comparable. So, relative valuation is a most important mechanism, and 99% of the investment banking companies like Morgan Stanley and others, they all choose this mechanism. Okay, 99% of the valuations are done on this basis. Okay, choose the comparable assets first. Okay, normalize prices per square feet. Here we are talking about real estate. That's why I'm saying normalize prices per square feet. Adjust for any differences. Apply the average to your property. If you are going to think about buying a property. Fine. The similar mechanism is applicable when you are buying a company. Let's understand that. Okay. Now we come to a company case. Valuing an unlisted company. Now this company is not available on the stock exchange, and this company is not selling on a stock exchange. Okay. And you want to know, you want to buy this company. You think this company is good. Okay. You want to start your business after doing your whatever BBA, or you will be doing some other course, and then you think that let me buy a company. My father is rich, I have money, okay, and he also wants to do business, and I will be participating, and I want to buy. So you think that you are going to buy a company which is called ABC Foods Private Limited, which is already a company which is listed, not listed but available, they are doing some business. Suppose ABC Food Limited is an unlisted FMCG company operating primarily in snacks and beverages. You want to estimate its equity value based on listed peers in the same sector. Now, if you want to buy the asset, now because this asset is not listed on the stock exchange, but there are some assets which are listed on the stock exchange. So you are going to take the help of them. Okay. So you are going to say that which are the FMCG companies which are listed in the stock exchange. Let me just look at them. Okay. What price they are selling. So select the listed comparable companies. You pick the companies that are in the same sector, FMCG, of similar size or business model. That means, you want to buy the company which are doing the same business, okay, exactly the same business or almost similar business model. Of course, you're not going to, you're not going to choose ITC or Hindustan Unilever. They are very big companies, okay, and you're buying a small company, okay, and they are into multi-products. So you are going to do away with ITC because it's already in cigarette. So you're not going to sell cigarettes. Okay. So an example of ITC will not fit your comparison. Similarly, HUL is a multinational company or a very big company dealing with thousands of products. This will not give you much. Okay. So you're going to choose, have a public financials and trade on Indian Stock Exchange. So you're going to just do first is you're going to do the research and find out which are the appropriate companies you should be looking for. Okay. Which will be the most ideal for you to find the price of this company which you want to buy, okay. So you found there were 4 companies, okay, after your research. Pratap Snacks, Houston Agro, DFM Foods and Mrs. Bector Food. Have you heard of these names? कौन सा वाला नाम सुना होगा आपने? कोई भी एक आता नाम सुना होगा आपने, क्योंकि they are small companies definitely. Bector Food, we are using Bector Food quite often. वो जो ब्राउन ब्रेड होती है सुबह हमारे घर में आती है. When you go to McDonald's and eat the burgers, yeah, they're supplying burgers to Mrs. Bector is a company. Okay, Kramica biscuits. Have you heard of that? Yes. So Kramica biscuits, and they came with an IPO just in 2020. Okay, so this is a big company, and all Pratap Snacks is also. If you look at Google, you will find and know what kind of products they're selling. You'll come to know. Okay, the name doesn't resound, but their products you are having in your house. Okay, you can do that in break. Okay, now first of all, you just look for all the details which are available, because they are listed companies. So all the information will be available to you. Okay, so let's say Pratap Snacks, 16 crore is the 100 is the revenue of this company. Okay, 1600 crore की इसकी turnover है. Second, this company is having
Agro is having 7,000, bigger than Pratap. 7,000 crores, okay? And it's a pretty big company. So that means when you go and see the products, you'll find that the products are our household products. Then Mrs. Bacta, 1,100 crores. I don't know whether these numbers are right or wrong, but let's say these numbers, there's a case study which I've made. We can go and check their numbers also, okay? Fine, Pratap Snacks, so this is the numbers, revenue, okay? Let's look at the numbers, okay? So revenue is given, these are the numbers. Second is EBITDA. EBITDA you know, सबको पता है, किसको नहीं पता है EBITDA? Full form of EBITDA. Earning before income, taxes, depreciation and amortization. And amortization. So that means this is the cash profit that the company earns. So this is a proxy to cash. Okay? Or operating profits, but before amortization, depreciation and interest. So this is the pure profit of the company, without distorted by the depreciation rates, without distorted by interest, because some companies are taking loans, some companies are not taking loan. So you want to know what profits these companies are making from doing their real business. So EBITDA is a very important number which will tell you, about the business and how much cash the company generates, because the depreciation and amortization are simply added because that is not an outflow of cash. So it's called proxy to cash. Now because the depreciations can change from country to country, it can be even within the country, it can be straight line, it can be diminishing method, you can adopt any accounting mechanism to calculate your depreciation. So it is going to ultimately distort the profit. Okay, some company is using diminishing method, so and some company using slow. Overall, the profits are going to remain same over the life, but they are going to have a volatility in the profits of the company from year to year basis, depending on what mechanism you are choosing. Is that okay? Fine. So similarly, tax. Now there are various tax rates: 25%, 18%, 30% in India itself. Similarly, suppose it's another company in the world where the tax rate is only 10%, okay, or say in England it is 30%. So when you are comparing businesses, you want to know what is the profit before looking at the things which can distort the profits of the company. And it is not telling you the real business profit of the company. So EBITDA is one, or EBIT would be another very great important. So generally people use EBIT, okay. EBIT is operating profits, because it is before interest. Because when you do business, you have a choice, either you borrow or use your own capital. And the composition of borrowed capital and own capital can vary from company to company, okay, and can always increase or decrease profits of the company or the bottom line because of the financial jugglery. Because what kind of capital structure you choose, you can always change your profits of the company. But there, you're not looking at the capital structure, you're looking at the business per se. So that means EBIT or EBITDA would be the right number to understand the business itself. How profitable is the business? That means the products and services what they are selling, that is more important to you, rather than what kind of color of capital a company is using. Is that okay? Which can distort the profit. So that's why you can look for EBITDA or EBIT. So EBITDA is given. Then PAT, which is the profit after tax. That means after paying all depreciation, interest, everything. Okay, fine. So that is there. Now PAT is a number, okay, which is nothing but the income of the company, which belongs to the shareholders, okay, after taking out all the expenses. Fine. Now PAT can always change from company to company. If the company is using a lot of debt, so it has to pay interest on that. So it will the profit will be different as compared to the company which is not using any debt capital. So we'll talk about that more later when we'll do little bit further research on that. Okay. So PAT. Then we look at multiples. Okay, please focus. This is the most important thing. Please don't talk to each other. Now we are looking for multiples. As in the case of real estate, what we did was we took the price of the building divided by the area. Okay. So there is a numerator and there is a denominator in every multiple. And then we arrive at a certain number per square feet and we apply that to the house that we are going to buy. Similar thing we are going to do here. Here the multiple changes. Here it is not per square feet, it is EV upon EBITDA. So this is one multiple. Second multiple is called price earning multiple, and third is called EV to sales. Okay, there are three very important multiples which we are going to talk about, and there are many more. Okay,
So these are the three very relevant multiples which we use, and they are called valuation multiples. Just like price per square feet, it's same as that, okay, but the name changes, okay. Here the P ratio is nothing but the market price, the market capitalization divided by income, or market price divided by earning per share, okay. The formalized market price divided by EPS, or we can always say is market cap divided by income. Same like, when you look at a house, so you take the price of the house and divide by per square feet. Here we are looking at the price of the company, that is the market cap, price of the equity, and divide by the net income, okay. So we get P ratio. Is that okay? So that becomes one multiple, okay. And this is the most widely valuation multiple which has been used in the world, and most of us use them, but it comes with some limitations, okay. It comes with some limitations. So there was always a need that, because one of the limitations would be because it's a net profit. The net profit can always be manipulated, because we can always find that the accountants can manipulate the profits by using different accounting policies, by suppressing certain, increasing the expenses. They would do a lot of things in past, but now we have very stringent accounting standards which don't allow you to do. But the net profit is always subject to some abuse. So, and sometimes the company don't make a profit. At the most bottom line level, the company is new, company will not make even a profit, okay. So then that means there will be no P ratio of that company. It will come to negative. Negative P ratio is not valid, okay, because it has to be net profit if the company is making a loss. So you can't calculate the P ratio. So that means this valuation multiple is going to fail, isn't it? So then there's a need for EV to sales, or we can say instead of EV, let's say market cap to sales. Let's say market cap to sales, okay, that's also a multiple, where we take the sales number instead of the profit number, because sales cannot be manipulated so easily by the accountants, okay. भाई जितनी सेल हुई है वो तो दिखानी पड़ेगी. सपोज मान लो कि उसमें मैनिपुलेशन कम है, नेट प्रॉफिट इज द लास्ट आइटम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, लॉट ऑफ मैनिपुलेशंस एट वेरियस लेवल्स कैन बी डन. सो हियर यू आर टेकिंग सेल्स ओनली, okay. So instead of taking profit, you are taking sales and calculating a multiple. And there is something called enterprise value. कभी सुनी है enterprise value? सुनी? नहीं सुनी, ओके. एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? सिंपल. मार्केट कैप सुनी है? मार्केट कैप सुनी है? किसी ने नहीं सुनी मार्केट कैप? किसी ने नहीं सुनी? हाँ, अभी देखते हैं मार्केट कैप. अब जाते हैं, एक सेकंड. अगर क्वेश्चन है तो इसमें पूछिए. अब मैं आपको दिखा रहा हूं मार्केट कैप, ओके. लेट्स से ओके, कौन सी कंपनी है ये? बेक्टर ले लेते हैं, चलो. दिस इज बेक्टर फूड्स, ओके, फाइन. ये मैंने साइन करा होगा? नहीं, इसको मैं लॉग इन कर देता हूं, ओके. एंड आई चूज बेक्टर फूड. So this is the Bector Foods, one of the company which we have chosen. So what is the market cap of the company? 9,243 crores. This is the market cap, okay. This is called the market cap, and market cap is calculated what? On the basis of current price multiplied by number of shares. So this is 6 crore 14 lakh shares multiplied by the current price, you will get 9,243. Is that okay? So market cap is nothing but the total share price prevailing in the market multiplied by the number of shares company has issued. Is that okay? So this is market cap. Now there is something called enterprise value, which will be there somewhere at the bottom, okay. ठीक है, समझ में आ गया? Okay. Now there is something called enterprise value, which is given at the bottom. आपने क्या करना है, यहाँ इसमें ऐड कर देना है रेशो, इसके अंदर ही. इस साइट के ऊपर जाओ, अब बाद में जाना, इसमें ऐड रेशो करना एंटरप्राइज वैल्यू, तो एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी. अभी लेकिन हम कैसे है, ये एंटरप्राइज है क्या? ये एंटरप्राइज वैल्यू देखो और मार्केट कैप के देखो, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको?
बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या चीज़ है इसके अंदर, कुछ एडेड है या कुछ निकली हुई है, ओके, कुछ एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करते हैं, ये मार्केट कैप लेते हैं और इसके अंदर हम जो है डेट ऐड कर देते हैं, डेट ऐड कर देते हैं, यानी कि जो कंपनी ने लोन दिया हुआ वो ऐड कर देते हैं। कंपनी का लोन कितना है, 184, ये ऐड कर दो मार्केट कैप में, करो, जस्ट डू इट। ऐड हो गया, ऐड हो गया 9427। अब मैं जाता हूं बैलेंस शीट के अंदर दोबारा, ओके, और मैं जाता हूं यहां पर अदर एसेट्स में। अदर एसेट्स में ये कैश आ रहा है 189, ये माइनस कर देता हूं। अब देखो, अब आपकी वैल्यू एग्जैक्टली एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी वहां पर। हाँ, वो थोड़ा बहुत आ सकता है, चलो कोई बात, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, ओके, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए वहीं पर ही। फॉर्मूला इज दिस, टेक द मार्केट कैप प्लस द डेट माइनस द कैश विल गिव यू द एंटरप्राइज वैल्यू, विल गिव यू एंटरप्राइज वैल्यू। ये कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है। अच्छा, अब हमने डेट ऐड क्यों करा, देखो ऐसा कम, ये जो है एंटरप्राइज वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, ये होती है ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो हमने क्या करना है, हमने जो एसेट्स खरीदे हैं वो कहां से खरीदे होंगे, कैपिटल से, शेयर होल्डर के कैपिटल से, या फिर हमने लोन लिया होगा, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, तो क्या आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स आ गई। क्योंकि शेयर प्राइस अब तो मार्केट कैप हो चुका है ना, प्राइस बढ़ चुका है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स आ गया। अब वो कहता है ऑपरेटिंग एसेट्स, जो कैश पड़ी हुई है दैट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एसेट, वो तो आइडल पड़ी हुई है ना। हाँ, मानो कि 99% कैश जो था एक्स्ट्रा कैश होती है, एक्सेस कैश होती है। द फॉर्मूला इज माइनस एक्सेस कैश, एक्सेस कैश। अब हमें एक्सेस कैश तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने सारी कैश माइनस कर दी। भाई जो कैश थोड़ी बहुत यूज होती है बिजनेस में, रोजमर्रा के कामों में, सैलरी पे करनी है, खर्चे करने हैं, वो छोड़ दो, बाकी सब तो एक्सेस ही है, वो तो आइडल पड़ी हुई है। या तो कंपनी ने क्या करा, उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया होगा, या कोई म्यूचुअल फंड में लगा दिया होगा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है वहां पर। तो वो कैश जो है कंपनी का बिजनेस नहीं चला रही है, तो हम कहते हैं हमें ऑपरेटिंग एसेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे। तो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, हाँ बताइए, एंटरप्राइज वैल्यू फॉर्मूला, माइनस कैश प्लस डिफरेंस। बताओ बताओ, मार्केट प्राइस माइनस कैश एंड कैश। आप बताओ, मार्केट प्राइस, मार्केट, हाँ बताओ, हाँ, मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश, एक्सेस कैश। द राइट फॉर्मूला इज एक्सेस कैश। दिस फॉर्मूला इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसका और भी कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, वो बाद में बताऊंगा मैं कभी, ओके फाइन। द सिंपलेस्ट वर्जन इज, एंड इसको क्यों निकाला गया है, हमने निकाला गया है इसलिए कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं आज की डेट में, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है एसेट्स की। तो मार्केट वैल्यू की मार्केट कैप लेनी पड़ेगी, और फिर डेट लेना पड़ेगा, डेट की तो मार्केट कैप ज़्यादातर वही वैल्यू होती है, ज़्यादातर वही होती है ना। तो हमने डेट को ऐड कर दिया, ओके, और जो कैश पड़ा था वो निकाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, ये टेबल है, ये टेबल जो है 2000 रुपये की है ना। इसके ड्रॉर में, इसका ड्रॉर है कोई नहीं है, सपोज इसके ऊपर मैं 5000 रुपये का नोट रख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7000, क्योंकि 2000 की वैल्यू और 5000 वो है। आप इसको खरीदोगे तो आपको कितनी वैल्यू पड़ेगी, आपको 7000 देने पड़ेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली कितना कैश देना पड़ा, 2 ही, क्योंकि जैसे ही खरीदोगे 5000 टेबल पर रखा है वो आपका ही हो जाएगा, तो आपके लिए वैल्यू तो 2000 ही है ना। तो एक्सेस कैश निकाल दिया हमने। तो ये मर्जर एंड एक्विजिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंटरप्राइज वैल्यू। कैश निकालते हैं, जो आदमी खरीदता है कंपनी, कैश तो उसकी जेब में आ जाता है ना, तो इसलिए वो उसकी वैल्यू जो है माइनस कैश हो जाती है। अगर मैं ये टेबल आप मुझसे खरीद रहे हो और मैं कहता हूँ उसकी वैल्यू 2000 है, इसके ऊपर 1000 500 के 2 नोट रख दिए, मैं कहूँ 3000 की टेबल ले जाओ, तो आपको तो घर में कितनी पड़ी, 2000 ही पड़ी ना। तो कैश निकाल दिया, क्योंकि कैश तो एक्स्ट्रा पड़ा था, तो ऐसे ही हमने कैश निकाल दिया। इज दैट ओके? अगर आप ऐसा समझ लो, बट दिस इज नॉट द राइट एक्सप्लेन। राइट एक्सप्लेन मैंने पहले दिया था, वो है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, ओके फाइन।
अब हम चलते हैं वापस। तो ये जो है आपका एंटरप्राइज वैल्यू आ गया। सो एंटरप्राइज वैल्यू आ गई। अब इस एग्जाम्पल को खत्म करेंगे, फिर ब्रेक आएगा। तो एंटरप्राइज वैल्यू आ गया। अब हमने क्या करा, हमने सेल्स कंपनी की ली और उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारी एंटरप्राइज बाई सेल्स आ गई। अब जैसे हम यहां देखते हैं, हाँ कोई बात नहीं। देखो मार्केट कैप थी, अब हमने देखा कि पी रेशो कितनी है इस कंपनी की, 76.4। दैट मीन्स मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट इनकम, जो कि प्रॉफिट लॉस में मिल जाएगी आपको, हम अभी निकालेंगे। तो इसकी कितनी आ गई, 76 पी रेशो। अब आती है हमारी एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, है कहीं नहीं है। एंटरप्राइज प्राइस टू सेल्स दी हुई है, तो हमने इसमें क्या करा है, एंटरप्राइज नहीं लिया हमने, प्राइस ले लिया हमने, ये ले ली मार्केट कैप और सेल्स से डिवाइड कर दिया, तो 5.31 एक मल्टीपल निकला है। हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, ईवी टू सेल्स, प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक, ये कई तरह के मल्टीपल्स होते हैं। ओके, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ज़्यादातर वो कंपनी सस्ती है, जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी महंगी है। ओके, so when you are buying a company, you look for lower multiples, but at the same time you should not forget that the company should have a great future also. अच्छा फ्यूचर है तो लोअर मल्टीपल पे खरीद लो, सस्ता माल खरीद लो, सस्ता बिक रहा है। तो अभी तक इतना, हम वापस चलते हैं इस एग्जाम्पल में, फिर और उसको एक्सपेंड करेंगे नॉलेज को। तो हमने क्या करा, हमने 3 तरह की मल्टीपल्स निकाली है। ओके, पहला निकाला ईवी अपॉन एबिटा, यानी कि देखो क्या है कि जैसे ये प्राइस टू, ये होती है मार्केट कैप टू नेट इनकम। ओके, ये होती है ईवी टू एबिटा। ओके फाइन, एंड दिस इज ईवी टू सेल्स। ईवी टू सेल्स वो कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कमा रही, या आप चाहते हो कि कंपनी का नेट इनकम कैन बी मैनिपुलेटेड, देन दिस रेशियो विल बी बेटर टू वैल्यू द कंपनी। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम लिमिटेड नॉलेज दैट दीज आर द मल्टीपल्स विच यू हैव कैलकुलेटेड। ये मल्टीपल्स को ध्यान से देख लो, इसके ऊपर और हम अंदर रिसर्च करेंगे और समझेंगे मल्टीपल्स हैं क्या और कब कब ये यूज होते हैं। आप अगर ये 3 मल्टीपल को समझ लोगे, बाकी सारे मल्टीपल और होंगे 2-4, वो भी समझ लोगे। ओके, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज आर मल्टीपल्स। सो दैट मीन्स दिस कंपनी इज ट्रेडिंग 40 टाइम्स देन इट्स नेट प्रॉफिट। अगर हम देखें तो ये 40 गुना अपने नेट प्रॉफिट से ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर ये 40 की जगह 30 होती तो हम कहते सस्ती है, जितना प्रॉफिट कमाती है उससे 40 गुना ऊपर ट्रेड कर रही है तो महंगी है। लेकिन अभी हमने देखा ये 74 है, एक्चुअल नंबर 74 है अभी मार्केट का, लेकिन जब ये बनाया गया था केस स्टडी तब ये 40 थी। ओके, और ईवी अपॉन एबिटा 18 है, यानी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 18 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है। जितना वो प्रॉफिट कमाती है उससे 18 गुना। नॉट नेट प्रॉफिट बिलोंगिंग टू शेयर होल्डर्स, बट द एंटायर प्रॉफिट ऑन द एंटायर कैपिटल। सारी कैपिटल को लेके या कैश प्रॉफिट के ऊपर वो कितना ऊपर ट्रेड कर रही है, 18 गुना। और सेल्स, जितनी सेल्स है उसका 2 गुना ट्रेड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज व्हाट्स योर नेम? अक्षत। अक्षत की कंपनी है जिसकी कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ है। ओके फाइन, और इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है 200 करोड़। तो 200 करोड़ डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 0.5 है ना, 0.5। तो आपकी कंपनी 0.5 टाइम्स ट्रेड कर रही है जितनी आप सेल करते हो। ओके, योर नेम इज याशिका। आपकी कंपनी है जिसकी की एंटरप्राइज वैल्यू सेम है, कितनी, 200 करोड़, और आपका प्रॉफिट है करीब 200 करोड़। आपका जो सेल्स है वो 200 करोड़ है, तो ईवी टू सेल्स कितनी आएगी, 1। तो इनकी कंपनी सस्ती है, अपनी कंपनी सस्ती है, इनकी कंपनी सस्ती है क्योंकि ये हाफ टाइम्स ऊपर है। आप भी सेम एंटरप्राइज है, इनकी भी एंटरप्राइज है, बट आपकी सेल दुगनी है और इनसे। ओके, तो आपका जो प्राइस इनकी मतलब जो भी है आपका जो है ईवी टू सेल्स ज़्यादा आ गया, तो महंगी होगी आपकी कंपनी महंगी होगी। ओके, आई एम जस्ट नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड। सो ईवी टू सेल्स इज वन ऑफ द इंडिकेटर टू टेल यू दैट। विल कम टू दैट लिस्ट लेटर, अगर नहीं समझ में आया तो। ये आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं एवरेज मल्टीपल निकाल लेते हैं। अब सबका एवरेज निकाल दिया, तो जो एफएमसीजी कंपनी है, जो कंपेरेबल कंपनीज हैं, उनका एवरेज ईवी टू एबिटा 8.7 है,
पी रेशो 41 है और ईवी टू सेल्स 2x है। ये समझ आ गया आपको? ये आ गया समझ में? इज दैट ओके? ओके, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कंपनी जो एबीसी है उसके क्या पैरामीटर हैं। उसका रेवेन्यू 300 करोड़ है, उसका एबिडा 40 करोड़ है और पैट 15 करोड़ है। ये जो कंपनी हम खरीदना चाहते हैं उसका देखेंगे वो कितना सेल करती है, कितना एबिडा कमाती है, कितना पैट कमाती है। ये 3 फिगरें आपको मिल गई जो आप खरीदना चाहते हो कंपनी। अब क्या करोगे आप उन मल्टीपल से वैल्यू निकाल लोगे। EV is equal to 40 crore into 18.7, that means this company will be 748 crores की इसकी वैल्यू है। इसकी एंटरप्राइज वैल्यू जो कितनी है 748 करोड़ है। इज दैट ओके? देखो इसमें क्या था, आपको EV अपॉन एबिडा मिला हुआ कितना है, वो 18.7 और एबिडा 40, तो आपकी EV निकल जाएगी, एंटरप्राइज वैल्यू निकली इस कंपनी की। तो पहली कंपनी की जो ABC कंपनी है उसकी एंटरप्राइज वैल्यू कितनी आ गई 748 करोड़। ये कंपनी 748 करोड़ की है एंटरप्राइज वैल्यू। अब आते हैं यूजिंग पी मल्टीपल। आपने क्या करा, 15 करोड़ इंटू 41 इज द पी मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाई द नेट प्रॉफिट विल गिव यू द एक्विटी वैल्यू। मार्केट कैप निकल आएगी 615 करोड़। इज दैट ओके? और EV अपॉन सेल्स कितनी थी, सेल्स कितनी है 300 को 2 से मल्टीप्लाई 600 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू निकलाई। तो आपके पास 3 फिगरें आ गई ओके कि एंटरप्राइज वैल्यू 748 करोड़ भी है और 600 करोड़ भी है, यानी 2 डिफरेंट फिगर्स आई हैं उसी कंपनी की ओके। और पी मल्टीपल से कंपनी 615 करोड़ की आ गई। ये 3 फिगर्स आपके पास आ गई। अब आपको वैल्यू करनी कंपनी, कैसे करोगे? एज्यूम द कंपनी का डेट जो है 50 करोड़ है, इस कंपनी ने 50 करोड़ उधार लिया होगा। तो क्या करेंगे हम, इक्विटी वैल्यू में से हम माइनस डेट कर देंगे ओके। सो इक्विटी वैल्यू विल बी सॉरी एंटरप्राइज वैल्यू माइनस द डेट ओके। सो अगर हम यहां देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो जाती है 748 करोड़ EV माइनस 50 करोड़ डेट, तो 698 करोड़ की इक्विटी वैल्यू आ गई ओके। और पी सेल्स उसकी तो इक्विटी वैल्यू निकलाई सीधा, और EV अपॉन सेल्स हमने करा 300 करोड़ माइनस 50 करोड़ रुपए हमने निकाल दिया डेट, क्योंकि 600 करोड़ निकली थी तो 550 करोड़। अब हमने कहा कि ये जो है जो कंपनी है वो बिटवीन 550 टू 698 करोड़ की इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये जो कंपनी आप खरीदना चाहते हो ये आपको रेंज मिल गई, आपको क्या हो गया, एक रेंज मिल गई। इस रेंज में इस कंपनी की शेयर वैल्यू है ओके। कैसे निकाली आपने, 550 करोड़, इसमें से आपने ये पकड़ ली 550 करोड़ सबसे लोएस्ट, और सबसे हाईएस्ट कितनी है वो है 698 करोड़। देखो इसमें इक्विटी 615 करोड़ है, इसमें 698 है, इसमें 550 है। सो रेंज कितनी है, दैट मीन्स इफ यू वांट टू बाय द एंटायर शेयर्स ऑफ द कंपनी यू शुड हैव आइदर समवेयर बिटवीन 550 करोड़ टू 698 करोड़ ओके। अब वो जब का जाओगे वो कहेगा मैं आपको 700 करोड़ की बेचना चाहता हूँ कंपनी, तो खरीदोगे? नहीं, महंगी है। बोलोगे ये तो कंपनी महंगी है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो कंपनी जो है समवेयर बिटवीन ये इसका प्राइस होना चाहिए ओके। तो हमने एक बॉल पार्क प्राइस निकाल लिया कंपनी का। अच्छा अब इसको पढ़ो आप, हु इज गोइंग टू रीड, कैन यू रीड चाशिका? Okay. ओके, जस्ट टू फिनिश इट अप, हमने क्या करना था, हमने इस कंपनी की वैल्यू निकालनी थी, किसकी, ABC। तो उसके लिए हमने क्या करा, कंपेरेबल कंपनीज खरीद देखी, उनके मल्टीपल्स ले लिए और वो मल्टीपल्स यूज करके इस कंपनी की वैल्यू निकाल दी। अब वैल्यू एक नहीं निकलेगी, या तो हम एवरेज भी निकाल सकते थे, जैसे हमने एसेट की जब हमने घर खरीदा उसका निकाल दिया था एवरेज, तो एवरेज भी निकाल सकते हैं ओके फाइन, बट हम रेंज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसका प्राइस कोई फिक्स नहीं होता है। आपको जब आप जाओगे लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कंपनी 250 करोड़ से 300 करोड़ के मध्य में मुझे खरीदनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये आती है ना फाइन। अगर वो कहेगा 400 करोड़ है तो कोई मैं नहीं खरीदूंगा, अगर वो बोलेगा 250 करोड़ तो बोला लाओ दे दो, क्योंकि आपके लो रेंज में आ रही है। अगर बोलेगा 300 करोड़ तो आप उससे नेगोशिएट करोगे। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जो एसेट है किस रेंज में मिल सकता है, ये कंपनी किस रेंज में मिल सकती है।
तो उसके लिए आपको एक मल्टीपल की यूज नहीं करा आपने पर स्क्वायर फीट का रेट नहीं, एक रेट नहीं लगाया, आपने क्या करा, आपने 3 तरह के मल्टीपल्स ले लिए और उस तीनों मल्टीपल से आपने जो है यू ट्राई टू फाइंड द प्राइस ऑफ द एसेट। आपने क्या करा, आपको पता है कि जो इंडस्ट्री मल्टीपल है दैट इज 18.7, ईवी मल्टीपल जो है 18.7 है। ओके, आपने एबिडा को 40 करोड़ को 18.7 से मल्टीप्लाई करा तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू आ गई, जो आप जिसका दैट मीन्स एबीसी जो कंपनी है उसकी वैल्यू 748 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू आती है। और इक्विटी वैल्यू क्या होगी, इसमें से डेट निकाल दो तो इक्विटी वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू परचेज द, अगर आपने पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपको इक्विटी खरीदनी है ना, डेट तो अपने आप ही आ जाएगा आपके पास। अगर आपकी कंपनी खरीदना चाहते हो तो आपको शेयर ही खरीदने पड़ेंगे ना, तो अल्टीमेटली यू आर वरीड टू नो अबाउट द शेयर वैल्यू। तो इसमें से 50 करोड़ निकाल दो तो 698 करोड़ की वैल्यू आ गई इक्विटी बेस्ड ऑन ईवी अपॉन एबिडा। बट बेस्ड ऑन पी मल्टीपल इसकी वैल्यू सिर्फ 615 करोड़ आती है। ओके, सस्ती आती है। तो आपको पता चलेगा ईवी के हिसाब से, पी मल्टीपल के हिसाब से, क्योंकि ये इसका मल्टीपल 41 है एवरेज मल्टीपल पूरी इंडस्ट्री का, तो इसका प्रॉफिट 15 करोड़ है, तो आप 15 करोड़ को 41 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ गई। तो ये कंपनी जो है 615 करोड़ की खरीद सकते हो आप। बट पहले मैकेनिज्म से आ रही है 698 करोड़, आज तो 748 आ रही है, 50 करोड़ निकाल दोगे तो आपकी 698 आ जाएगा, एक रेंज आ जाएगी। लास्ट मेथड है ईवी अपॉन सेल्स। आप वो वाला मल्टीपल यूज करके, आपको पता है कि पूरी इंडस्ट्री की ईवी टू एबिडा जो है, प्राइस टू सेल्स, सॉरी ईवी टू सेल्स इज 2 एवरेज। ईवी टू सेल्स कितना है इंडस्ट्री का, 2। तो आपने ईवी को मल्टीप्लाई करा 2 से तो आपकी एंटायर आ गई एंटरप्राइज वैल्यू। तो इसकी एंटरप्राइज वैल्यू कितनी, 600, इसमें से डेट निकाल दिया 50, तो इसका मतलब प्राइस कितना आ गया, 550 करोड़। तो अब आपके पास प्राइस 3 तरह के प्राइस हैं, 550 करोड़, 615 करोड़ और 698 करोड़। आपने इनको यहां रखा। ओके, आपने इसको यहां रखा। 550 करोड़ से 698 करोड़ के बीच में आप ये कंपनी को खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर हम इसमें थोड़ा सा और देख लें, पर फिर हम ब्रेक रखते हैं। चूज इन, अब इसका पॉइंट क्या है, चूज इंडस्ट्री रेलिवेंट साइज कंपेरेबल लिस्टेड पीयर्स। सो दैट मीन्स यू हैव टू चूज दोज कंपनीज विच आर इक्वलेंट टू दिस कंपनी। ओके, आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं लेनी, आपको नेस्ले नहीं लेनी, they are also FMCG companies, okay, they are also making all those products. So you just disregard all the big companies. Choose the listed peers which are similar to your own company, okay, because there are a lot of companies in this field. Okay, just let me and then you can ask. Use multiples. आपको क्या है, EV to EBITDA, P ratio, EV to sales, कई तरह के मल्टीपल्स हैं। आप सब मल्टीपल्स के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल लेते हो। आप कहते हो कि यार तीनों मल्टीपल से मैं अपना वैल्यू निकालता हूँ, तीनों से अलग अलग वैल्यू आएगी, एक वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एक वैल्यू किसी कंपनी की हो ही नहीं सकती है। ओके, कोई कंपनी कहते हो कि ये 500 करोड़ की है, ऐसा कहना, हाँ 500 करोड़ के आसपास है, 10 +- 10%, ये कहते हैं ना, 450 से 550 करोड़ में कंपनी मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही मैकेनिज्म से, तीनों मैकेनिज्म से वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी। एडजस्ट फॉर डेट टू गेट द इक्विटी वैल्यू। आपने डेट निकाल देना है, अल्टीमेटली आपको इक्विटी चाहिए, बिकॉज यू वांट टू बाय इक्विटी ऑफ द कंपनी एंड नॉट डेट। तो ऑटोमेटिकली आप इनहेरिट कर जाओगे कंपनी का, जब आप कंपनी खरीदोगे तो आपको उसका डेट भी चुकाना पड़ेगा। तो आपको तो डेट, कंपनी का इक्विटी खरीदोगे तो कंपनी के मालिक बन जाओगे, तो डेट निकाल दो। यूज एवरेज और वेटेड एवरेज ऑफ मल्टीपल्स। एक तरीका क्या होता है, आप ये मल्टीपल्स लो, उन सब का एवरेज लो, उसके हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हो, एक वैल्यू निकाल सकते हो, बट दैट वोंट बी द राइट मैकेनिज्म। ओके, क्रॉस चेक विद मल्टीपल मैट्रिक्स फॉर वैलिडेशन। आपने क्या करा, क्रॉस चेक पढ़िए, जस्ट रीड। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ क्रॉस चेक। ओके, फाइन। अब आप ये देखेंगे व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ईच मल्टीपल रिफ्लेक्ट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। पहला, प्राइस अर्निंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड मैच्योर कंपनीज विद स्टेबल अर्निंग्स, दिस मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। अगर कोई बड़ी स्टेबल कंपनी है और मैच्योर कंपनी है तो देन द पी रेशियो वुड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर वैल्यूइंग द कंपनी, एंड वील डिस्कस दैट लिटिल लेटर, ब्रेक के बाद। ईवी अपॉन दिस थिंग, न्यूट्रल टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंसेस। कंपनी या तो डेट यूज कर रही है या इक्विटी यूज कर रही है, इट्स न्यूट्रलाइज। हमने ले लिया कंपनी जो है कि क्या कलर ऑफ कैपिटल यूज करती है, वो डिसरिगार्ड कर दिया और कंपनी की वैल्यूएशन मैट्रिक्स निकाल दिया। तो दिस इज अ मोर
रेलिवेंट मैट्रिक्स। तो लोग कहते हैं पी से बेटर मैट्रिक्स ईवी अपॉन एबिटा है। सो विच मैकेनिज्म इज बेटर, प्राइस अर्निंग और ईवी अपॉन एबिटा? एज पर द एनालिस्ट ईवी अपॉन एबिटा। व्हाई? बिकॉज हेयर वी आर नॉट लुकिंग एट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। क्या कंपनी ने डेट से अपना बिजनेस कर रही है या सारा का सारा पैसा अपना लगाया हुआ? क्योंकि उससे कंपनी का प्रॉफिट चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है ये हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ईवी अपॉन सेल्स, क्योंकि हमने टॉप लाइन ली है विच इज सब्जेक्ट टू लीस्ट दिस थिंग, सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट मेक प्रॉफिट्स बट यू स्टिल वांट टू। सपोज आपने कोई लॉस मेकिंग कंपनी खरीदनी है, क्योंकि आप लॉस मेकिंग कंपनी तो खरीदोगे, जनरली क्या करोगे, आपको कंपनी खरीदनी है, आप बोलोगे लॉस कर रही है ले लो, तो उसका तो पी मल्टीपल होगा ही नहीं। तो फिर तो आप ईवी अपॉन सेल्स ही को देखोगे ना भाई, अपनी सेल्स से कितने